بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ باہر بارش کی ہلکی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ میں صحن میں رکھی ہوئی پرانی کرسی پر بیٹھی اپنے ہاتھوں سے شال بن رہی تھی۔ میرے ذہن میں ہر طرح کے خیالات ابھر رہے تھے۔ شوہر کا غصہ، گھر کا بوجھ، اور سب سے بڑھ کر میری فالج زدہ ساس جو پچھلے 2 سال سے بستر پر اٹھ نہیں پاتی تھی۔ ان کی سانسیں اکثر تیز چلنے لگتی تھیں، جیسے کسی انجانے خوف نے ان کے وجود کو جکڑ رکھا ہو۔ رات کے اندھیرے میں اکثر وہ میری آواز پر چونک جاتی اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دہشت بھرا سایہ لہراتا۔ میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ کیا دیکھتی ہیں، لیکن اس رات کچھ اور ہی ہونے والا تھا۔ صبح کے وقت جب میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی تو ساس کے کمرے سے ایک عجیب سے کرہانے کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر اندر گئی تو دیکھا وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی اور ان کے چہرے پر خوف کی لکیریں واضح تھیں۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس پکڑایا۔ امی کیا ہوا؟ سانس کیوں پھول رہی ہے آپ کی؟ انہوں نے کپ کپاتے ہونٹوں سے بس اتنا کہا، مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی میرے اندر حرکت کر رہا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ بیٹی، میں شاید حاملہ ہوں۔ میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا، میری زبان جیسے جم گئی ہو۔ یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ لیکن وہ رو پڑی۔ میں خود نہیں جانتی، پچھلے کچھ دنوں سے میرے پیٹ میں حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ میں ڈر گئی تھی، کسی کو بتایا نہیں، مگر اب برداشت نہیں ہو رہا۔ میں فوراً اپنے شوہر کو فون کرنے بھاگی۔ وہ شہر کے دوسرے کنارے فیکٹری میں تھا۔ میں نے کپ کپاتے لہجے میں کہا، ارمان، امی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا، وہ کہہ رہی ہیں۔ کیا؟ وہ غصے سے بولا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں چپ رہی۔ بولو۔ اس کی آواز گرجدار تھی۔ امی کہہ رہی ہیں کہ وہ حاملہ ہیں۔ ایک پل کو دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر فون کی دوسری جانب وہ دھاڑا، پاگل ہو گئی ہو تم؟ ابو کو مرے 10 سال ہو گئے، یہ سب تماشا کیا ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہی ارمان، وہ خود کہہ رہی ہیں۔ فون بند ہو گیا۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ شام کو ارمان گھر آیا، دروازہ زور سے کھولتے ہی چیخا، امی کہاں ہیں؟ میں ڈرتے ڈرتے بولی، کمرے میں۔ وہ اندر گیا۔ امی خاموش لیٹی تھی۔ احمد نے ان پر غصے سے نظریں گاڑ دی۔ یہ کیسی گھٹیا بات پھیلا دی آپ نے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ امی کے چہرے پر خوف اور شرمندگی کے آثار تھے۔ بیٹا، میں خود حیران ہوں، مگر میرے جسم میں کچھ بدل رہا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ ارمان نے میز پر ہاتھ مارا۔ آپ کی عمر 60 سے اوپر ہے اور ابو کو مرے 10 سال ہو چکے، یہ ناممکن ہے۔ امی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا، میں نے تو بس وہی بتایا جو محسوس کر رہی ہوں۔ ارمان نے غصے میں کہا، کل میں آپ کو ہسپتال لے جاؤں گا، پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے۔ اگلی صبح ارمان امی کو گاڑی میں بٹھا کر قریبی کلینک لے گیا۔ میں گھر پر ہی رہی مگر دل بے چین تھا۔ دوپہر کو جب وہ واپس آیا تو اس کا چہرہ پھیکا تھا اور آنکھوں میں خوف تھا۔ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس نے آہستہ سے کہا، ڈاکٹر نے کہا وہ واقعی حاملہ ہے۔ میرے قدم زمین میں دھنس گئے۔ میرے اندر جیسے طوفان برپا ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ارمان؟ وہ بولا، ڈاکٹر بھی حیران ہے۔ اس نے کہا، ایسی حالت ممکن نہیں، مگر الٹرا ساؤنڈ میں واضح حرکت ہے۔ امی گھر آئی تو بالکل خاموش تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھتی جاتی۔ رات کو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی، میں نہیں چاہتی یہ بچہ اس دنیا میں آئے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ وہ بولی، کیونکہ یہ انسان کا بچہ نہیں۔ میں لرز گئی۔ آپ کیسے کہہ رہی ہیں امی؟ وہ آہستہ سے بولی، جب میں رات کو سوتی ہوں کچھ سایہ میرے سرہانے آتا ہے، کبھی کسی مرد کی طرح، کبھی دھوئیں کی طرح، وہ میرے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ میں چلا نہیں سکتی، صرف آنسو بہا سکتی ہوں۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے ارمان کو بتایا تو وہ پھٹ پڑا، بس کرو یار، پاگل پن، امی بیمار ہیں، ان کے دماغ پر اثر ہے، کل ہسپتال لے جا کر آپریشن کروا دوں گا۔ مگر رات کچھ ایسا ہوا جس نے سب بدل دیا۔ امی کے کمرے سے آدھی رات کو عجب سی کرکراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی فرش پر گھسیٹ رہا ہو۔ میں دبے پاؤں وہاں گئی تو دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ میں نے بلب جلایا تو بستر ہل رہا تھا۔ امی کے چہرے پر تکلیف تھی، ان کی آنکھیں کھلی تھی مگر وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں ان کا ہاتھ پکڑا تو ان کے پیٹ میں ہلکی سی جنشش محسوس ہوئی، جیسے کوئی اندر سے لوٹ مار کر رہا ہو۔ میں چیخ پڑی۔ ارمان بھاگ کر آیا۔ امی بے ہوش تھی۔ ہم نے ڈاکٹر کو فون کیا مگر اسی لمحے امی نے آخری سانس لی۔ ان کا جسم اکڑ گیا اور ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی، جیسے وہ کسی انجانے مظلوم کو دیکھ رہی ہوں۔ میں رونے لگی۔ ارمان خاموش تھا، جیسے پتھر بن گیا ہو۔ اگلے دن ان کی تدفین کر دی گئی۔ ارمان نے کچھ نہیں کہا، بس مسلسل سگریٹ پیتا رہا۔ رات کو امی کے کمرے میں گئی تاکہ ان کے کپڑے سمیٹ لوں۔ کمرہ بالکل ویسا ہی تھا، ان کی خوشبو اب بھی تھی۔ میں تھکی ہوئی تھی تو وہیں ان کے چارپائی پر لیٹ گئی۔ کچھ لمحوں بعد نیند آنے لگی تو اچانک چارپائی ہلنے لگی۔ پہلے
आहिस्ता फिर तेजी से। मैं घबरा कर उठी मगर कमरा खाली था। हवा का झोंका आया और दीवार के पास रखा पुराना ट्रंक धड़ाम से जमीन पर गिरा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने इसे संभाला मगर नीचे एक छुपा हुआ खाना दिखाई दिया। मैंने उसे खोला, अंदर एक पुराना ट्रंक था। मैंने झुककर इसे खींचा। ट्रंक पर गर्द जमी हुई थी मगर ताला खुला हुआ, जैसे किसी ने अभी अभी बंद किया हो। मैंने जैसे ही ढक्कन उठाया, अंदर से किसी कपड़े में लिपटा हुआ छोटा सा वजूद नजर आया। मेरी सांस रुक गई। मैंने कपड़ा आहिस्ता से हटाया और देखते ही मेरा जिस्म कांप उठा। ट्रंक के अंदर लिपटा हुआ वो वजूद मेरी उंगलियों को छूते ही जैसे हिल सा गया। मेरी चीख गले में अटक गई। मैंने कपड़ा खोलकर देखा तो अंदर से एक छोटा सा गुड़िया नुमा बच्चा बरामद हुआ, मगर उसके चेहरे पर हकीकी इंसानी खंदोखाल थे। आंखें बंद थी मगर ऐसा लग रहा था जैसे अभी पलकें हिलने वाली हों। मेरे हाथ लर्जने लगे, मेरी आंखें नमी से धुंधला गईं। ये क्या था? कोई जादू, कोई बदरू या वाकई अम्मी का बच्चा? मैंने ट्रंक बंद करने की कोशिश की मगर उसमें से हल्की सी कराहट की आवाज आई, बिल्कुल वैसी जैसे अम्मी के मरने से पहले इनके मुंह से निकलती थी। मैं पीछे हटी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे की लाइट जगमगा रही थी और फिर बंद हो गई। सिर्फ खिड़की से चांदनी आ रही थी। मैंने मोबाइल की फ्लैश ऑन की तो वो गुड़िया अब अपनी पोजीशन बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट थी। मेरी चीख निकली। अरमान दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ मरियम? मैंने कपकपाते हाथ से ट्रंक की तरफ इशारा किया। ये खुद हिल रहा है। अरमान ने तेज कदमों से ट्रंक खोला। अंदर कुछ नहीं था, वो खाली था। अरमान ने मुझे घूरा। क्या मजाक है? ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं रो पड़ी। मैंने खुद देखा अरमान, वहाँ कुछ था। वो जिंदा था। वो गुस्से से बोला, अम्मी की मौत से तुम्हारे दिमाग पर असर हो गया है। कल से ये कमरा बंद रहेगा। इसने ट्रंक उठाकर स्टोर में रख दिया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उस रात हम दोनों ने नींद का जायका नहीं चखा। रात के पिछले पहर अचानक किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। अहमद बोला, बिल्ली होगी। मैंने कहा, हमने तो कई दिन से बिल्ली नहीं देखी। मैं नीचे गया तो देखा बर्तन सीधे रखे थे मगर फर्श पर पानी फैला हुआ था, जैसे किसी ने गीला वजूद वहां से गुजारा हो। अरमान वापस आया तो इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो पानी खुद बह रहा था जैसे कोई नाली में खींच रहा हो। मैं कांपते हुए बोली, अरमान क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब अम्मी के जाने के बाद शुरू हुआ है? वो चुप रहा, फिर बोला, सो जाओ, ज्यादा सोचो मत। लेकिन नींद कहाँ थी? अगले दिन जब मैंने स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से बंद था। हालांकि अरमान ने बाहर से ताला लगाया था। मैंने झांक कर देखा, ट्रंक का ढक्कन आधा खुला हुआ था। मुझे साफ महसूस हुआ कोई अंदर सांस ले रहा है। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और भाग गई। मेरे दिल में खौफ की जगह अब एक और एहसास पैदा हो रहा था। अम्मी की बातें याद आ रही थी। बेटी वो इंसान नहीं है। रात के वक्त अजीब अजीब चीजें होने लगी। दरवाजा खुद ब खुद बंद होना, खिड़की से साया गुजरना और दीवार पर अम्मी की आवाज में सरगोशियां। कभी कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती, हल्की दुबकी हुई, जैसे किसी ने मुंह बंद कर रखा हो। एक दिन अरमान ने गुस्से में आकर स्टोर का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर ट्रंक मौजूद था मगर अब वो आधा खुला हुआ था और इसके अंदर कोई चीज नहीं थी, सिर्फ एक पर्ची रखी थी। अरमान ने उठाई, इस पर लिखा, मैं वापस आऊंगी जब वो दुनिया में आएगा। हम दोनों के हाथ से पर्ची छूट गई। अरमान बोला, ये किसने रखा? मैं कपकपाते लहजे में बोली, अम्मी के मरने के बाद तो यहाँ कोई नहीं आया। अरमान गुस्से में कहा, बस अब ये घर छोड़ देंगे। हम अगले दिन ही शहर के दूसरे हिस्से में किराए के घर में मुंतकिल हो गए। पुराना घर बंद हो गया लेकिन सुकून वहाँ भी नहीं था। कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया रात को मेरे पेट में हल्की सी हरकत होने लगी है। पहले मैंने इसे वहम समझा मगर वो एहसास दिन ब दिन बढ़ता गया। अरमान काम से थका आता तो मैं कुछ न कहती, लेकिन एक रात मैंने हिम्मत करके कहा, अरमान मुझे लगता है मैं शायद हामिला हूँ। अरमान ने चूम कर मेरी तरफ देखा। क्या? मगर हमने तो। मैंने सर झुका लिया। हाँ, हमने महीनों से। वो खामोश हो गया। कमरे में हू का आलम था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक। अगले दिन जब डॉक्टर के पास गई तो अल्ट्रासाउंड के दौरान नर्स के हाथ कांपने लगे। डॉक्टर ने स्क्रीन देखी और चेहरा फीका पड़ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर बोला, आपके पेट में बच्चे की धड़कन नहीं है मगर हरकत है। मैंने हैरत से कहा, मतलब? ये कोई आम हमल नहीं लगता, जैसे कुछ और हो। डॉक्टर का जुमला अधूरा रह गया क्योंकि कमरे की लाइट बंद हो गई। मैंने स्क्रीन की रोशनी में देखा, अंदर वही गुड़िया नुमा वजूद था जो मैंने अम्मी के ट्रंक में देखा था। मैंने चीख मारी। डॉक्टर भाग गया। नर्स बेहोश हो गई। अरमान मुझे घर ले आया मगर अब मैं खुद को बदलता हुआ महसूस कर रही थी। रात को मेरे कानों में अम्मी की आवाज गूंजती, बेटी वो आ गया है। कभी कभी मैं नींद में चलने लगती। अरमान कहता, मैं नहीं, बेहोशी में बातें करती रहती हूँ। अम्मी, मैं
मैंने इसे पाल लिया। एक रात अरमान ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, ये सब खत्म करो मरियम, हम मौलवी के पास चलेंगे, ये कोई जादू है। मैंने खामोशी से सर झुका दिया। मौलवी साहब हमारे घर आए, उन्होंने सूरज यासीन की तिलावत शुरू की। पहले सब ठीक रहा, फिर अचानक लाइट बंद हो गई, इनकी आवाज रुक गई। अरमान ने मोबाइल की रोशनी की तो देखा मौलवी साहब जमीन पर गिरे हुए थे और इनकी आंखें खुली थी। इनके सीने पर अम्मी का पुराना दुपट्टा रखा था। मैंने खौफ से मुंह पर हाथ रख लिया। अम्मी का दुपट्टा? वो तो इनके साथ दफन हुआ था। अरमान ने दुपट्टा उठाया, इसमें लिपटा हुआ एक छोटा सा खून आलूदा कपड़ा था। जब खोला तो अंदर वही पर्ची थी, मैं वापस आऊंगी जब वो दुनिया में आएगा। मेरा दिल बंद होने लगा। मैं बोली, अरमान ये सब खत्म नहीं हुआ। वो बोला, अभी खत्म होगा। अरमान अगले दिन कब्रिस्तान गया। अम्मी की कब्र खोलने की इजाजत नहीं मिली, मगर वह चुपके से रात को गया। मैं इसे रोक न सकी। तो सुबह वापस आया तो इसके हाथ लर्ज रहे थे। मैंने पूछा, क्या देखा? वो धीरे से बोला, कब्र खाली थी। मैं साकत रह गई। खाली? वो बोला, हाँ, सिर्फ एक पुराना ट्रंक रखा था, बिल्कुल वही जैसा हमारे घर में था। मेरे आंसू बहने लगे। अरमान वो कभी मरी नहीं थी। अरमान ने चीख कर कहा, बस करो और कमरे से निकल जा। मैं बिस्तर पर लेट गई। मेरा पेट अब बहुत भारी महसूस होने लगा था। अंदर कोई था, हिलता मुड़ता जैसे जिंदा। मैंने आहिस्ता से हाथ रखा और अचानक अंदर से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी चीख निकल गई। कमरे के दरवाजे पर साए लर्जने लगे और दीवारों से अम्मी की आवाज आई। मैंने कहा था ना वो इंसान का बच्चा नहीं। मैं चीखती रही मगर आवाज गले में दब गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। सुबह की हल्की सी रोशनी कमरे के पर्दों से छन कर अंदर आ रही थी। मैं बिस्तर पर नींद बेहोश पड़ी थी। मेरे पेट में तेज दर्द हो रहा था, जैसे अंदर कोई चीज मुड़ रही हो, चीख रही है। मेरे हाथ खुद ब खुद पेट पर जा रहे थे और मेरी सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। अरमान मेरे पास बैठा था। इनके चेहरे पर खौफ और बेबसी के मिले जुले आसार थे। मरियम, हिम्मत करो, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर नहीं, वो नहीं समझेंगे। मेरे लहजे में खुद मेरी अपनी आवाज नहीं थी, जैसे किसी और की आवाज मेरे अंदर से निकल रही हो। अरमान ने चूम कर मेरी तरफ देखा। ये तुम्हारी आवाज नहीं है। मैं मुस्कुरा दी। ये मेरी नहीं, तुम्हारी माँ की है। अरमान पीछे हटा। क्या बकवास है। मैं हंसने लगी मगर वो हंसी मेरी नहीं थी, वो बिल्कुल अम्मी की हंसी थी। वो ही भारी लर्जती हुई जैसे किसी ने मुर्दा गले से निकाली हो। अरमान ने कुरान उठाया, सूरत बकरा पढ़ने लगा। कमरे में हवा का एक भूचाल सा उठा, पर्दे उड़ने लगे, दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। मैंने चीख कर कहा, बंद करो ये आवाज। मेरी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। आमद ने जोर से तिलावत की। मैं तड़पने लगी। बिस्तर हिलने लगा। अचानक मेरे पेट से एक झटका सा लगा और कमरा साकत हो गया। अरमान ने मेरा हाथ पकड़ा। मरियम, मरियम। मैं नहीं, बेहोश हालत में पड़ी। वो आ गया। अरमान ने डर के मारे पीछे देखा। बिस्तर के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आ रही। पहले छोटे छोटे हाथ, फिर एक छोटा सा जिस्म बाहर निकला। अरमान ने इसे देखकर चीख मारी। वो एक बच्चा था मगर आम बच्चा नहीं। इसकी आंखें सुर्ख थी, दांत नुकीले और चेहरे पर अम्मी की पुरानी झुर्रियों जैसे निशानात। वो रेंगता हुआ अरमान के कदमों में आया और हल्की सी आवाज में बोला, अब्बू। अरमान के जिस्म से खून खुश्क हो गया। ये क्या है? मैं हंसने लगी। मैंने कहा था ना अरमान, वो वापस आएगी। बच्चा हंसने लगा। उसकी हंसी में औरत और बच्चा दोनों की आवाजें शामिल थी। फिर वो अचानक हवा के मुअल्लक हो गया और कमरे की लाइटें बंद हो गई। अरमान ने कुरान की आयत पढ़ी, लेकिन बच्चा गुस्से से चीखा और अचानक दीवार से टकरा गया। पूरा कमरा लर्ज उठा। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर कह रहा था, आपका बच्चा जिंदा पैदा नहीं हुआ। मैंने सर मोड़ा। मेरा पेट खाली महसूस हो रहा था। मेरे जिस्म पर आंसू बहने लगे। वो कहाँ है? डॉक्टर ने कहा, जब हम पहुंचे आपका शौहर बेहोश था और आपके इर्द गिर्द खून फैला हुआ था, लेकिन बच्चे का कोई निशान नहीं मिला। मेरी सांस रुकने लगी। क्या मतलब? कोई निशान नहीं मिला? हमने पूरा कमरा देखा मगर वहाँ कुछ नहीं था। मैंने धीरे से आंखें बंद कर ली। मेरे कान में हल्की सी आवाज आई। मैं वापस आ गई। मैंने आंखें खोली। सामने वही अम्मी खड़ी थी, बाल बिखरे, चेहरा जर्द, और इनकी गोद में वही बच्चा था। वो बोली, अब ये तेरा नहीं, मेरा है। मैं चीखने लगी मगर आवाज बाहर न निकली। अम्मी आगे बढ़ी, बच्चा मेरे करीब लाई और बोली, ये वही है जो तुमने मेरी जगह ले ली। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अरमान कई दिन बाद होश में आया। उसने पुलिस को सब बताया मगर किसी ने यकीन नहीं किया। जब वो घर वापस आया तो उसने देखा सिंह के बीचों बीच एक नई कब्र बनी हुई थी। किसी ने रातों रात बनाई थी। कब्र के कुतबे पर लिखा था, जाहिदा बीबी और उसका बच्चा। अरमान जमीन पर गिर गया। जाहिदा बीबी यानी अम्मी का नाम। उसने चीख कर कहा, मरियम कहाँ है? इसी लम्हे कमरे से हल्की सी लोरी सुनाई दी। अरमान भाग कर अंदर गया। वहाँ झूला हिल रहा था। अंदर एक बच्चा लेटा था, चेहरा कपड़े में छुपा हुआ। अरमान के हाथ कांप रहे थे। मैं कपड़ा हटाया और अंदर मरियम का चेहरा था मगर आंखें बंद थी।
झूले के नीचे एक पर्ची रखी थी। मैंने कहा था ना वो दुनिया में आएगा। अरमान की चीख पूरे घर में गूंज गई। उसके बाद मोहल्ले वाले कहते हैं वो घर कभी वैसा नहीं रहा। रात के वक्त वहाँ एक औरत की हंसी सुनाई देती है। कभी कभी झूले की आवाज आती है जैसे कोई बच्चा हिलाया जा रहा हो। कुछ लोगों ने बताया कि वो औरत जो कभी वहाँ रहती थी अब भी रातों को सेहन में सफेद लिबास पहने एक गुड़िया लिए बैठी नजर आती है और मध्यम आवाज में लोरी गाती है, चुप हो जा बेटा, अब कोई हमें जुदा नहीं करेगा। ये वो कहानी थी जिसमें एक औरत की मासूमियत को एक मर्द की नादानी और एक माँ के बदले सब कुछ बदल दिया। कभी कभी मौत सिर्फ खत्म नहीं करती,